بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، جبکہ پی ٹی آئی نے ملک کو ڈی ٹریک کر دیا تھا۔ مشکل فیصلے کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد معاشی بحران اور مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چینیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کیا۔ عبد الرحمان طاہر سیال رپورٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی چینیوٹ آمد۔ چینیوٹ میں دورے کی دعوت معروف کاروباری شخصیت ایم ایس عمران نے دی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے چینیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ حلف اٹھاتا ہوں کہ ایوان صنعت و تجارت چینیوٹ کے قواعد و ضوابط پر اپنی بہترین خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایوان صنعت و تجارت چینیوٹ کے مفادات کے لیے کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ساکھڈار اور ان کی ٹیم ملک کو موجودہ معاشی دلدل سے نکالنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد معاشی بحران سے نکل آئیں گے۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، پوری دنیا نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، تو پاکستان اس وقت بھی بحرانوں سے نکلا تھا۔ وہ اسحاق ڈار اور وہ ٹیم لیڈ کر رہی ہے کہ جب 2013 میں 16 سے 18 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جہاں سے بڑی انڈسٹری اکھڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہی تھی، کوئی شخص یہاں پہ نئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس ملک میں کیا انویسٹمنٹ کریں جہاں 18 اور 20 گھنٹے بجلی بھی نہ ہو، آپ کی انرجی جو ہے اس کے یہ حالات ہوں۔ تو اس وقت اگر ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا، جو 300-350 ارب روپے صرف پورے ملک کا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہوتا تھا، اس سارے کو بھی اگر ہم 10 سال لگاتے رہتے تو اتنے پلانٹس، اتنی شارٹیج تھی، وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کی محنت اور کوششوں سے، گورنمنٹ کی کوششوں سے، اللہ کے کرم سے ایک جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایف ڈی آئی کے ذریعے، چائنا اور سی پیک کی انویسٹمنٹ کے ذریعے یا انرجی پلانٹس لگے، ودن کپل آف ایئرس وہ یہاں پہ جو بجلی کی کمی تھی وہ دور ہوئی اور ہم آگے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے تھے۔ تو آج وہ ٹیم مخلصانہ طور پہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج لوگ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اپنے پچھلے تمام ادوار میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں، انفلیشن کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، یا مہنگائی کا کمر توڑنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور جی ڈی پی گروتھ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، بہتر بزنس فرینڈلی پالیسیز دینے میں کامیاب ہوئی تھی۔ آج وہ کامیابی فوری طور پہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حالات پچھلے 4 سال میں بگاڑ اتنا پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک کوئک فکس جو ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ آبجیکٹیوز وہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہو، آبجیکٹیوز، اہداف وہی ہیں کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس کے لیے ہم کریں۔ لیکن ابھی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی ہوں گے۔ انشاءاللہ بہتری کی سمت جب ایک متعین ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ جلد از جلد بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے۔ بہرحال جو میری ذمہ داری ہیں، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اچھا کام لے، صحیح راستے پہ رکھے۔ ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی بالادستی کی اور آئین کا احترام کرنے کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک کو دیوار سے لگایا گیا، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت سی پیک کے منصوبوں کو ملک بھر میں پھیلا رہی تھی۔ تاہم آج پھر سے نون لیگ کی حکومت میں ملک صحیح سمت گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ 5.5 ماہ میں 5 سال سے زیادہ کام کر کے دکھایا۔ عمران خان کے وی این کے مطابق نکاح نامے میں عقیدہ ختم نبوت کی شک شامل کی۔ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بار ایسوسی ایشنز میں
20 करोड़ रुपए ग्रांट के चेक्स की तकरीब तकसीम के मौका पर किया। खत्म नबूवत का एक्ट जो पास हुआ था, ये सबसे पहले झंडा उठाया था इमरान खान साहब ने, और उसके बाद फिर हमने उसको आगे 2 कदम आगे बढ़ाया और यूनिवर्सिटी, खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी कायम कर दी सीरत अकेडमी के अंदर, और वहाँ काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐप कल हमने इफ्तिताह किया है कि कोई भी कहीं यूट्यूब पे कोई हेट मटीरियल दीन के खिलाफ आएगा, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होके तो वो ब्लॉक हो जाएगा पूरे मुल्क के अंदर। कौम की जो नुमाइंदगी है वो मजबूत हाथों में है, और उनकी टीम इमरान खान साहब की बेहतरीन टीम है। हर सेक्टर के अंदर उन्होंने काम किया है। ओवरसीज देखे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर आज कोई और नाम नहीं रहता किसी और का। ये शरीफों को कितना अरसा हो गया बाहर रहते हुए, ये जाके कोई सब्जी नहीं खरीद सकते लेकिन हालात इनके ये। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इमरान खान साहब और पीटीआई के हाथ मजबूत करने चाहिए। अब जो लीडरशिप है हमारी, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इलेक्शनों में भरपूर अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगी। तो जहां से हमने काम छोड़ा है, आज हमारा दुश्मनी भी मान रहा है कि 5 महीने के अंदर हमने 5 सालों जितना काम किया है। 97 में भी मैंने ये डिफेंडर्स एक्ट पास किया असेंबली के अंदर, और उसके बाद फिर हमने उसको लागू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-2 लोगों की वजह से वो सारे का सारा रह गया। तो अब अल्लाह ताला ने मौका दिया, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो अब हमने उसको एक्ट को बकायदा पास किया सारी टीम ने, ताकि जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी दाद रसी जो है अगर नहीं होती तो फिर निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है। इमरान खान साहब का जो हेल्थ कार्ड है ये बड़ा कामयाब हुआ है, और इसके ऊपर अब कैंसर का इलाज फ्री हो जाता है। इमरान खान साहब हर वक्त आम आदमी, गरीब आदमी का सोचते रहते हैं कि मैंने इसकी लाइफ में कैसे तब्दीली लानी है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना है, जो इमरान खान साहब का विजन है। इसलिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। तो हमारी सब की दुआएं हैं इमरान खान साहब की सेहत सलामती के लिए। अल्लाह ताला उनको कायम दायम रखे, उनको सेहत सलामत रखे, तो बहुत तरक्की होगी। शेखुपुरा में क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ब्यूटिशियन एंड आर्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ब्यूटिशियन कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात में असनाद और तहाइफ तकसीम किए गए। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। शेखपुरा में क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ब्यूटिशियन एंड आर्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब सजाई गई, जिसमें ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन की सरपरस्त आला ज़रताज ज़री, सदर बुशरा बुखारी, जनरल सेक्रेटरी किरण असगर, सीनियर वाइस चेयरपर्सन ज़ेबुलनिसा, चेयरमैन सबीहा मंजूर और नगीना कौसर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ब्यूटिशियन एंड आर्ट के ऑनर हाजी मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शहबाज भट्टी, इंस्ट्रक्टर निमरा मुश्ताक, सदर अंजमन ताजरान खालिद मुगल ने इंस्टीट्यूट से ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात अतीका, रिमशा, महक, सुमेरा, लाइबा, रहीन अक्सा, बिस्मा शफीक और दीगर को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जबकि ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन की ओहदेदारान ने कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात में असनाद और तोहफे तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए बुशरा बुखारी, ज़रताज ज़री और किरण असगर ने कहा कि ब्यूटिशियन की फील्ड में बच्चियों की बढ़ती तवज्जो लायक तहसीन है, जिससे इस फील्ड को फ़रोग मिलेगा और कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात अमली तौर पर खुद कफील हो सकेंगी। उन्होंने इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी को भी सराहा, जबकि कोर्स मुकम्मल करने वाली तालबात ने ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन में शमूलियत अख्तियार करने का भी ऐलान किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मौके पर हलाक, जबकि एक शख्स मौजाना तौर पर महफूज रहा। तफसीलात के मुताबिक कश्मोर के रिहायशी तीनों अफराद जतोई में रिहाइश पजीर थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी सहाफी कॉलोनी में पुलिस चौकी का कयाम। सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने पुलिस चौकी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मियां यासिर की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी सहाफी कॉलोनी में पुलिस चौकी कायम कर दी गई। सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी और CCPO लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डॉगर ने तख्ती की नकाब कशाई करके पुलिस चौकी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी ने कहा कि सहाफी कॉलोनी में पुलिस चौकी के क़याम का असल क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जाता है, जिनके हुक्म पर रिकॉर्ड मुद्दत में पुलिस चौकी का क़याम अमल में लाया गया है। सहाफी बरादरी और पुलिस का चोली दामन का साथ है। CCPO गुलाम महमूद डॉगर ने कहा कि सहाफी कॉलोनी में पुलिस चौकी के क़याम से कब्जा और भत्ता माफिया के खात्मे और जराइम के तदारक में बड़ी मदद मिलेगी। मुआशरे की इस्लाह में ज़राए अबलाग और सहाफी बरादरी का इंतहाई अहम किरदार है। सहाफी हमारी आंखें और कान हैं, जिनकी बरवक्त निशानदही और रहनुमाई के जरिए ही मुआशरे की इस्लाह, जराइम का खात्मे और मजलूम को इंसाफ की फराहमी मुमकिन होती है। तकरीब में SP कैंट रजा तनवीर, DSP बागनपुरा सर्कल आतफ मराज, SHO खिजर हयात और दीगर पुलिस अफसरान समेत सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान का कहना है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के हल्फ को पूरा न करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों को महकमे में रहने का कोई हक नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रावलपिंडी में पुलिस लाइंस में खिताब के दौरान किया। जावेद फखरी रिपोर्ट कर रहे हैं। IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान की ज़ेर सदारत RPO ऑफिस में रावलपिंडी क्राइम मीटिंग। IG पंजाब का रावलपिंडी रीजन के तमाम अजला में CIA सेंटर्स कायम और जदीद खतूत पर इस्तवार करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में मोटरसाइकिल चोरी और हवाई फायरिंग के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। IG पंजाब ने रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में रीजन के तमाम DSPs और SHOs से खिताब में कहा कि पुलिस का काम खल्क़े खुदा की खिदमत, शहरियों की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और पूरी फोर्स को भर्ती के वक्त लिए गए अपने हल्फ को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान से कहा कि थानों में आने वाले शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुद को साइलिन की जगह पर रखकर उनकी तकलीफ महसूस करें। इसी फार्मूले को आजमा कर आप सही मानों में अवाम की जानो माल के मुहाफ़िज़ और खिदमत गुज़ार बन सकते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ भलवाल में जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मर्द ख़ातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राशिद महमूद चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ भलवाल में जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर, सदर सियासी कमेटी चौधरी मुयस्सर अहमद गुज्जर, राशिद अकबाल अमीर बलवान जोन, मौलाना हफीजुर रहमान अमीर जमात इस्लामी बलवाल ने की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी नताइज तब्दील करने की रवश तब्दील करे, जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे, नहीं तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने माजी में कराची की खिदमत करके साबित कर दिया था कि जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जिसके मुंतखब नुमाइंदे अवाम की हकीकी खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने एक दयानतदार शख्स को हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में मुंतखब किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे तस्लीम करे। बलवाल में जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली बल्दिया चौक से शुरू हुई और मेन बाजार प्रेस क्लब चौक का चक्कर लगाकर रेलवे चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। लाला मूसा में वादों से तकमील तक का सफर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवामी MNA सैयद फैजुल हसन शाह की काविशों से लाला मूसा अंडरपास का काम शुरू हो गया। इलाके में तरक्याती काम कराने पर समाजी और अवामी हलकों ने MNA सैयद फैजुल हसन शाह को खराजे तहसीन पेश किया। DPO खानेवाल नईम अजीज संधू ने अब्दुल हकीम में खुली कचहरी लगाई, जिसमें ताजिर बरादरी, सहाफी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी में लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पुलिस कम नफरी के बावजूद जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जंग लड़ रही है, ताहम बाज हलकों की जानिब से बेजा इल्जाम तराशी की जाती है। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं जिनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है, बिला जवाज इल्जाम तराशी से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुशीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी कमर जमान कायरा ने
स्पेशल टीवी की कामयाब लॉन्चिंग पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात में ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक से बातचीत के दौरान उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब के साथ, जो लाला मूसा की पहचान है, हमारे हल्के की आन और शान है। स्पेशल न्यूज़ के बारे में वो किस तरह से अपनी जो स्पेशल ट्रांसमिशन का जिस तरह से हम आगाज करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या राय देंगे, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले स्पेशल न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी मैनेजमेंट को, सारी टीम को। बड़ी कम्पिटिटिव मार्केट है पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल्स की, इसमें आपने कदम रखा है और मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों और आप अच्छी और दुरुस्त खबरें फैलाने का, लोगों तक सही खबर देने का एक आला ज़रिया बने। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी। Thank you.